friends. Hello, all of you. Today we are going to start one numerical session, that is one mathematical, we can say, session for the moving average method of 3 years. So, moving average method होता क्या है? मूविंग एवरेज मेथड जो हमें न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, विच इज़ आस्क फॉर 3 years, 5 years, 4 year and 7 year. So we will start with the minimum year, that is the lesser one, which is a 3 years. So question, how the question which is plotted as a in examination, the years are given in moving average. You can see here 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 and 89. सो आपको ये ईयर्स जो है एग्ज़ाम में ऑलरेडी दिए जाते हैं. आफ्टर दैट द सेल विच इज़ गिवन इन मिलियंस, right, which is not in thousand, which is given in million. So sales of that particular organization of so and so product for a year. So 1980 में सेल मिलियन में 3 था, then 81 में 4, 82 में 8, 83 में 6, 7, 11, 9, 10, 14 एंड 11. सो इस तरह से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल क्या होता है ईयरली. मूविंग एवरेज मतलब क्या होता है? मूविंग मतलब क्या, जो डे टू डे बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपका सेल मूव होता है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस क्या है, ऑन दैट बेसिस मूविंग एवरेज विच इज़ कैलकुलेटेड. सो दिस 2 columns which is asked in the exam, ये 2 columns आपको दिए जाते. आफ्टर दैट दिस 2 column you have to draw. So what is this 3 year moving total? This is not an average, this is a total. So how you are going to calculate this particular thing, that is your 3 year moving total. So always remember, whenever it is asked for 3 years, you have to drop starting column and you have to drop the end column. Right, this is the rule to solve the numerical. Whenever it is asked for 3 years, always remember पहला कॉलम मैं फिर से बताती हूँ, and the last column you have to leave nil or else blank. आफ्टर दैट जैसे हमें 3 years का पूछा गया है, सो वी आर कैलकुलेटिंग द 3 years फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इज 3, 4, 8. 3, 4, 8 के बीच में 3 जो सेल्स हैं उनके बीच में मिडल वैल्यू इज 4. दैट इज वाई द अमाउंट वी आर गोइंग टू राइट जस्ट नियर टू द 4, दैट इज ऑन 15. 4 के सामने ही हम जो है 15 वैल्यू लिखेंगे, ना कि हम यहाँ लिखेंगे 3 के सामने, ना कि हम लिखेंगे 8 के सामने. सो दैट कॉन्सेप्ट यू हैव टू क्लियर. वेन एवर इट इज आस्क फॉर 3 years, फर्स्ट कॉलम यू हैव टू कीप इट ब्लैंक. आफ्टर दैट 3, 4, 8, द टोटल इज 15. यू हैव टू राइट 4 के जो आगे है वो आपको लिखना है इन द मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. आफ्टर दैट 4, 8, 6, 8 के सामने आपको 18 लिखना है. देन 8, 6, 7, 21, 6, 7, 11, 24. दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस. राइट, आपने अभी कैलकुलेट किया. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट विच इज़ द लास्ट कॉलम, विच इज़ द 3 year मूविंग एवरेज टोटल. हमने अभी 3 year मूविंग टोटल निकाली है, विच इज़ अगेन कैलकुलेटेड फ्रॉम 3 years, कि ये 3 सालों का मिला के मेरा सेल कितना हुआ, ये टोटल है. अब इस टोटल की एवरेज हमें निकालनी है, विच इज़ अगेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. यू कैन सी हियर विच आई ऑलरेडी क्रिएटेड टू सेव द टाइम. सो 15/3 हमें 3 years का पूछा गया, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस टोटल बाय 3, विच इज़ 5. 18/3. Similarly we are going to divide that 21/3, 24/3, 27/3, 30/3, 33, 36. That is again the same. Last column as usual you have to keep it blank, and the first column you have to keep it blank. Simple friends, have you remember or have you understood this concept? Again I will tell you, whenever it is asked for the 3 years, first and last column you have to keep it blank. You have to calculate 3 year of sale और आपको मिडल वैल्यू में लिखना है. सेम टोटल मूविंग you have to divide by 3 is equal to whatever your value which is calculated by yearly basis. Now the same numericals, which is a very easiest way to remember that, आपने जितने भी अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, that same answer you have to plot on your graph. सो भी ग्राफ होता क्या है, ग्राफ समटाइम्स द ग्राफ पेपर्स आर गिवन, समटाइम अगर मोस्टली जो है 99% ग्राफ पेपर दिया नहीं जाता है, सो यू हैव टू ड्रॉ ऑन योर ओन पेपर.
on your own answer sheet. So you can see here, this is y axis we are going to take. Okay, x axis पे हमने लिया है year, which is your same year, right? जो year है 80, 81, 82, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है 80, 81, 82, 83 से लेके 89, आपको लास्ट कहाँ तक दिया है 89, सो यू हैव टू कीप इट टिल 89. नाउ यहाँ पे हमने क्या लिया है, सेल्स. सेल्स हमने यहाँ पे लिया है. सो सेल्स विच इज़ वी हैड टेकन द मेजरमेंट which is sale. On y axis we had taken measurement, we had taken 1 centimeter is equal to 1 million of your sale, right? तो हमने यहाँ पे 3 4 से स्टार्ट नहीं किया है, we had directly started from 1 2 3 4 5 6 which is again on series basis we had started. We had not taken directly 3 4 8 6, we had started on series basis, right? So this is the graphical way that you have to plot your graph. This is the table format. So after that you have to plot this number. Now we are going to start with the 81. 1980 का आपका जो है सेल एवरेज कितना था, that is again your 5. So we are going to take a 5. 80 में आपका कितना था, which is again blank, but 81 में आपका कितना था 5. So here which comes 81, that is 5. करेक्ट, समझ में आ रहा है? यू हैव टू जस्ट मेक अ मार्क हियर. ऑलवेज रिमेंबर 81 है, इसके सामने आपका एवरेज कितना आया है, दैट इज अगेन 5, राइट? सिमिलर वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 82. 82 पे कितना आया है 6. सो यू कैन सी हियर 82 इट इज गिवन 6. Then on your 83, 7, then 8, 9, then 11 and 12. 9, 10, 11 and 12. So this dotted things you have to draw a line which is maybe a straight line. कभी कभी ये straight line हो सकती है, कभी कभी ये downward भी जा सकती है as per your this moving average. So which is all this dot we have to create one line. This line which is called as trend line, right? इस line को हम कहते हैं trend line. Remember friends, again I will tell you वेरी इजिएस्ट वे. वाई एक्सिस पे हमने सेल लिया है, ऑन योर एक्स एक्सिस वी हैड टेकन ईयर, राइट? सो वी हैड टेकन 80 ईयर, द 80 विच इज़ ब्लैंक. तो 81 में हमने कितना लिया है 5. सो 81 जिसके सामने हमने जो है डॉटेड लाइन जो है डॉटेड जो है पॉइंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए, एंड वी आर गोइंग टू यू नो मेक अ लाइन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉट. ओके, सो दिस इज हाउ विच इज़ क्रिएटेड. Again the second step which we have, that is sales which is given in million. So 3 4 8 6 7, that again we have to draw it with the same diagram, same graph. So that is again 80 पे कितना था आपका 3 which is same dotted. 81 again 4. 82 पे आपका सेल कितना था मिलियन which is given 8. So 8 यहाँ पे आएगा 82 पे. 83 पे क्या था 83 which is 6. 6 here you have to make a dot over here for the 6. 84 which is again 7. 84 which is a given 7, we are going to draw a dot here 7. Then 85 पे कितना था 11. सो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू ड्रॉ 11, एक डॉट हम बना देंगे. 86 पे कितना था 86 विच इज़ 9. 86 9 पे आता है, राइट? देन 87 10 नंबर, 10 सेल्स. 88 which is 14.
and the last one which is 89 is 11. Okay, last है 89 which goes to the 11. तो ये जो zigzag हमने जो है यहाँ पे जो ड्रॉ किए हैं पॉइंट्स, दैट पॉइंट वी हैव टू क्रिएट नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट वी हैव टू मेक अ डॉटेड लाइन. इस तरह से हमें डैश डैश करके एक डॉटेड लाइन बनानी है. राइट, हैव यू सीन द लाइन? Okay, so we have created a dotted line which is again your sales in million. So one step in the graph you have to draw a straight line which is your trend line. जो आपका final answer आता है उस value के लेके you have to make a dot and then you have to create a straight line. After that the second step जो sales आपका already question में दिया गया था वही आपको जो यहाँ पे जो है उसके जो है एक डॉटेड आपको लाइन ड्रॉ करके जो अपने पॉइंट्स बनाए हैं उसको आपको जो है कोलैबोरेट करना है. तो दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट वे you can draw a graph with the help of pencil, right? Measurements you have to write here on the right hand side which is again compulsory. So this is how the question is. 3 years का है. First again I will explain. First column, last column blank. Divide these three amount, put the value here. दिस वैल्यू यू हैव टू डिवाइड बाय 3. 3 क्यों? क्योंकि हमें 3 ईयर्स का पूछा गया है. आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ. वाई एक्सेस एक्स एक्सेस पे जो सेल्स हमने लिया है वो एक्स एक्सेस पे ईयर लिया है विच इज़ अगेन अ सेम विच विल यू विल नॉट चेंज इन दैट. आफ्टर दैट जो आंसर आपका आया है द मूविंग एवरेज वैल्यू यू हैव टू पुट अप अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ डॉट्स. सेकेंड मेथड, दैट सेकेंड टाइप और सेकेंड स्टेप वी कैन से जो सेल्स आपका दिया गया है वो आपको पॉइंट्स ड्रॉ करके एक डॉटेड लाइन बनानी है. दैट इज़ योर कंप्लीट फाइनल आंसर ऑफ योर मूविंग एवरेज मेथड ऑफ 3 years. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक डी कोड.